Hello guys, this is Nikhil Sharma once again, and today we are going to learn conditional formatting in Excel. So before that, small recap. Okay, so इसमें है लेट्स सपोज अगर कुछ नंबर अगर आप किसी नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं तो फिर you selected these numbers. Okay, you selected these numbers, so you have to find the average of this number. The average of this number is 4.42.0909. So these three things are common in every Excel. Okay, तो आप ये easily आप पता कर सकते हैं कि कितने हैं टोटल, मतलब टोटल काउंट में कितने 22 काउंट में है, टोटल इनका सम क्या है 926 है, और टोटल एवरेज क्या है इनका तो 42.09 है. सो यू डोंट हैव नीड टू अप्लाई द फार्मूलाज, द सम फार्मूलाज. if you want to just get the quick recap of what is the average, sum and count, okay, for these three things. So this is the small thing. So we are going to deal with conditional formatting today. Conditional means what? Means where the condition applies. जब कोई कंडीशन अप्लाई होगा तभी ये फॉर्मेटिंग यूज होगी हमारी. ओके, सो उससे पहले हम पहले पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लेंगे. लेट्स ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद highlight cell rules and top bottom rules today. This is the part 1 of conditional formatting video. Okay, so from here we are going to start. So highlight cell rules. Greater than, for this and this, we need the number data in numbers. Okay, so data in numbers, we are the numbers are here, so select the data which are in numbers. Okay, like that. Or you can, what you can do, if you want to select the whole data, means from this cell to this cell, easily press Ctrl Shift then down arrow. Okay, then right arrow, Ctrl Shift down arrow and right arrow. You can do like this also, means from person, Control Shift, press Control Shift then right arrow then down arrow. You can select all the data at once with just the small buttons. Okay, with just the buttons or keyboards. Okay, where we are, we have to select this column. We have selected this, the number column only, because the condition is this. If the number is greater than, how much? This is the age. Okay, if the number is greater than, let's suppose 45. If the number is greater than 45, then they will be tested for the COVID test. Okay, let's suppose, okay, this is the condition only. Okay, अगर 45 से इनकी एज अगर ज़्यादा है तो वो मैंडेटरी है कि वो कोविड टेस्ट के लिए जाएंगे. सो ये हमारा रेड हो गया, लाइट रेड. ओके, इसको आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके रूल्स को क्लियर भी कर सकते हैं, एंटायर शीट के लिए भी और सिलेक्टेड सेल्स के लिए भी, बट मैं इसको एंटायर शीट के लिए करूँगा. दिस इज़ द गुड थिंग. ओके, नाउ वंस अगेन ग्रेटर देन 1. सो इफ़ यू वांट टू ऐड मोर कलर्स, मीन्स अगर आपको ये रेड कलर नहीं चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट में जा कर के आप फिल में जाएंगे और कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सपोज आई वांट दिस ब्लू, नेवी ब्लू कलर. सो दिस इज गोइंग टू बी द नेवी ब्लू कलर, बट दिस इज नॉट विजिबल एट ऑल राइट नाउ. सो वी पुट द ग्रीन टेस्ट. ओके, नाउ clear the rules from the entire sheet or the selected columns. Now the less than, if the less than अगर 45 से कम है, अगर 45 से जितने भी कम है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, उसको ये क्या कर देगा, रेड ग्रीन कर देता है, यानी कि वो सेफ है. दे आर सेफ एंड दे डोंट नीड द कोविड टेस्ट. इट्स जस्ट कंडीशन वंस अगेन. ओके, सो 40 एंड 45 से जितने भी कम है ये सिलेक्ट कर लिया, 45 और 45 से जितने भी ऊपर है ये सिलेक्टेड नहीं करना. ओके, दिस इज द थिंग. वंस अगेन clear the rules. Now
Now what we are going to learn, this between. अगर we need the between, okay. बिटवीन अगर किसी एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में आएगा या किसी एक एज से दूसरे एज के बीच में है वो, तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है. लेट्स सपोज फ्रॉम एज 20, दिस इज जस्ट द कंडीशन आई एम अप्लाइंग राइट नाउ, to 44, they are safe, they are considered as safe, and okay, and they have the strong immune system, you can say that. Means it's just a condition I am applying right now. So this is green, means they don't need anything, or after that you can apply one more condition. What is that one more condition? Between 45 to 70, let's suppose, they are considered as red, okay. So I think this is very easy thing, you did it, okay. अगर लेट्स सपोज अगर आपने इस 37 की जगह पे आपने 65 लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, ओके. दिस इज द मैजिक थिंग, द कंडीशनल फॉर्मूलाज फॉर्मेटिंग थिंग इज द मैजिक थिंग. इफ वंस अगेन यू डिड द 35, ये अपने आप ही टर्न हो जाएगा ग्रीन में, क्योंकि हमने दो फार्मूलाज अप्लाई कर चुके हैं जो फॉर्मेट कर दिया. अगर आपको उस फार्मूलाज को मैनेज करना है जो आपने अभी अप्लाई किया, तो मैनेज रूल्स में जाएंगे आप और क्या करेंगे, इसको इजीली आप एडिट रूल्स कर सकते हैं. एडिट करना है आप एडिट कर लीजिए, कंटेन्स ऑल सेल्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके. यू कैन डू दिस. दिस इज गोइंग टू बी वेरी डीप, बट वी आर लर्निंग फ्रॉम जस्ट मीन्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग्स ओनली, ओके. And when you use it practically, you will understand all the things very easily in daily life, okay. Now clear all the rules again, and between equals to, when the number is equals to, let's suppose we are going to apply this thing here, okay. In salary, this is the number also. When the number is equals to what? Equals to the exact value, should have the exact value for this, 59,000, then please turn it red, okay. So there is only 59,000, so this is red, okay. अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, it's not the matter. equals to 40, if the person is equals to what, 63 is their number, 65 not 65, 45, yeah, there are how many 45s, okay, only one 45, okay. I think it's very clear. So now once again remove the clear rules from the entire sheet so that you won't be mismatched or misguided with the colors. Once again we will learn this thing, text that contains. अब हम conditional formatting condition लगाएंगे जिसमें text हो. So we need text, okay, we need text. So text that contains, उसको वो जो भी कलर करना होगा वो कर देगा. लेट्स सपोज दिस इज द टेक्स्ट, सो हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो क्लिक किया और डायरेक्ट हमने इसको सिलेक्ट कर लिया. नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए हम, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ओहियो. लेट्स सपोज आई सिलेक्टेड इलिनॉइस, उसको ये ग्रीन कर दे. ग्रीन क्यों कर दे, एक कंडीशन हमने बना ली कि जितने भी इलिनॉइस वाले पर्सन हैं, दे आर वेरी सेफ फॉर द कोविड थिंग एंड दे हैवंट फाउंड एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड, ओके. दे आर सेफ. एंड टेक्स्ट दैट कंटेन्स ओहियो, दे आर नॉट सेफ. बट टेक्स्ट दैट कंटेन्स Indiana, okay, text that contains Indiana,
that is, let's suppose the color is yellow, no sorry, green. Okay, we have made a condition that जो इंडियाना से हैं वो उनका भी टेस्ट करना है, बिकॉज दे आर इन ओहियो से जो है वो सेवियर कंडीशन में है और इंडियाना से है, उनका भी टेस्ट करना है, लेट्स सपोज दिस इज द कंडीशन. ओके, सो यू कैन डू दिस. अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी इलिनॉइस की जगह इंडियाना लिखते हैं, इंडियाना, सो द कलर will turn to the green or whatever you have chosen. Okay, once again clear all the formattings from here. I think you understood all the things. अब क्या करना है हमें? Date occurring. We need a date. Yeah, there is a date. Okay, date occurring. Select the date, control shift and down arrow. Okay, date occurring. Click the date. Yesterday, as you can see there is February, yesterday, no yesterday, March and April's dates are here. Okay, so मेरे को ये कंडीशन बनानी है कि जितने भी मंथ नेक्स्ट मंथ में है वो ग्रीन में हो जाए. द नेक्स्ट मंथ टर्न टू ग्रीन and sorry, the next month turn to green and this month is not like that. Okay, next to next month. सो हमने कंडीशन क्या बनाई कि जो नेक्स्ट मंथ होगा वो ग्रीन में हो जाएगा. सो यहाँ पे फेब्रुअरी ग्रीन में हो गया, यू कैन सी दैट. ओके, द ओनली फेब्रुअरी इज नॉट मार्च, नॉट अप्रैल. ओके, इज दैट क्लियर? या, इट्स वेरी इजी. Clear the rules. Now date occurring, it's finished. Yeah, let's suppose अगर आपके पास कोई डेट होता 13th of, sorry, it's like it's 1. Okay, this is Jan now. Condition of formatting, date occurring, not yesterday, in the last 7 days. In the last 7 days, turn it to red border, red text. Okay, turn it to red text means the last 7 days, the 13th Jan is in the last 7 day. So 13th Jan, आज 19th of Jan है, तो 13th of Jan red हो गया. Okay, clear rules. So ये आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब कभी भी आपको किसी जो EOD है, एंड ऑफ द डे, मतलब आपको कभी मार्क करना हो तो ये इजीली आप कर सकते हो बिना किसी इशू के. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़. इफ़ यू हैव द डुप्लीकेट वैल्यूज़ मीन्स अगर आपके पास नंबर्स में डुप्लीकेट है या टेक्स्ट में डुप्लीकेट है तो वो इसको ईजिली वो कर सकते हैं. लेट्स सपोज मेल, यहाँ पे मेल और फीमेल का जो है यहाँ पे कैसे करेगा, डुप्लीकेट है, देयर आर सो मैनी डुप्लीकेट्स. सो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करना है. जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उनको रेड मार्क कर देंगे. सो मेल एंड फीमेल दे बोथ आर द डुप्लीकेट वैल्यूज़. सो जस्ट remove, you can select this number. Once again apply this duplicate values. There are how many duplicate values are there? 35 is the duplicate value, 32 is the duplicate value, 40 is the duplicate value. So you can see all the red marks are the duplicate values. Now clear the rules. Duplicate values, in duplicate values there it is
something here. You can see I'm showing you right now. Click on the duplicate value, the unique values. Okay, the duplicate values, the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, they all are the duplicate values. How many unique values are here? How many unique values are here? They all are the unique values. Why? Because they are repeating themselves, that they are the duplicate values. There is no unique values. If let's suppose if you want to delete this one and add Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, remove this one, sorry, this one, put the means science. Okay, now put the science. This is the unique value. First we have to clear all the rules. Once again we are going to do the duplicate value, the unique value. There is only unique value, the science, but हमें उसको क्या करना है, ग्रीन चाहिए, मेरे को तो ग्रीन ही चाहिए. ठीक है, तो हमने इसे ग्रीन कर दिया एंड जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है उनको रेड कर दो. सो यू कैन सी द यूनिक वैल्यू इज दिस एंड द डुप्लीकेट वैल्यू इज दिस. ये आपको यूजफुल हो सकता है जैसे कि आपको बहुत सारा डेटा है and you have to find the unique values from the abundant of data, the large vast data, so you can easily do that. Okay, clear all the rules now. So हमने highlight cell rules कर लिया. Okay, easily. अब हम करेंगे top bottom rules. Okay, the top 10 items or top 10 things, the numbers. We are going to play with numbers. Top 10 items. Click on this. So ये क्या करेगा, जो top 10 चीज़ें हैं उनको select कर लेगा in order. But अगर जो सबसे ज़्यादा होगा वो top पे रहेगा हमेशा, जो सबसे कम होगा वो नीचे आता रहेगा 1 2 3 4. बट अब ऐसा करना है मेरे को, ये top 1 चाहिए मेरे को. I need top 1 only. So इसका मतलब हुआ कि 65 is the top 1, means there is no other 65 number. अगर मैंने 65 यहाँ पे लिख दिया तो ये भी हो जाएगा. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 75 करा तो ये 75 टॉप 1 बन जाएगा और बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज द टॉप 10 रूल. ओके, नाउ बॉटम 10 आइटम्स. ओके, बॉटम 10 मतलब जो सबसे कम होगा वो अब पहले आ जाएगा. बॉटम 10 जो सबसे कम होगा वो फिर सबसे ज़्यादा होगा, फिर सबसे ज़्यादा होगा वो आएगा. ओके, सो ये सिर्फ 10 का ही है और हमारे पास पूरा डेटा 22 है. अगर मैंने 22 कर दिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. वी डोंट नीड दैट. सो ये क्या करना है मेरे को, इसको करना है मेरे को बॉटम 1 चाहिए. मतलब 1 ऐसा कौन सा सबसे कम नंबर है जो टॉप नहीं बॉटम 1 है. 21, दिस इज़ द टॉप 21 जो कम है सबसे, और हमने उसको ग्रीन करा था. और ये हमने अभी तक, ये देखो यहाँ पे रूल्स अभी तक क्लियर नहीं किया हमने, तो इसको रूल को क्लियर करना पड़ेगा. क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट. क्लिक फिनिश. नाउ टॉप 10% मीन्स अब इस पूरे डेटा में से what is the top 10%? You can do this from this one. This is the data. What is the top 10% of this data? Top 10%. Top 10% of this data is $65,400 and $81,400. Okay. इसको आप ग्रीन में कर सकते, किसी भी कलर में कर सकते. You can, it's your wish, man. Now bottom 10. What are the bottom 10? जो सबसे कम है 10% बॉटम से $37,700 and $36,700. Okay, easy. Now clear the rules from the entire sheet.
ओके बट अगर आपने इस कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है तो आप हमेशा इसको ही मतलब सिर्फ सेपरेट कॉलम में से आपको रूल्स हटाने हैं, तो आप इसको ही सिलेक्टेड सेल्स को क्लिक करेंगे। इजी। नाउ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बॉटम 10% इज अभी हमने कर लिया एवरेज, अबव एवरेज। ओके नाउ हमने इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इसका एवरेज क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज काउंट और सम आता है, तो एवरेज इसका क्या है? 53,841। ओके सो अगर हमने इसमें अबव एवरेज किया तो इस वैल्यू से हमेशा जितनी भी ऊपर वाली जो अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेगा ये अबव एवरेज। यू कैन सी दैट जितनी भी है 53,000 से तो वो कम ज़्यादा ही है सारी की सारी। यू कैन सी। ठीक है, अब हम दोबारा से लगाएंगे, उसको हम ग्रीन कलर करेंगे, जो बिलो एवरेज है उसको करेंगे अब हम बिलो एवरेज। ओ बिलो एवरेज मस्ट बी ग्रीन। ओके सो हमें पता चल जाएगा। तो बिलो एवरेज ये है देखो बिलो एवरेज मतलब एवरेज जो था 53 था, तो बिलो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इट्स इजी मैन, हो गया। सो हमने आज ये और ये कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा बास, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स ये सब करेंगे। ओके नो प्रॉब्लम। सो thanks for watching this video and hope you like this video. Okay, I think this is valuable for you. Bye bye.